शेयर नहीं हट रहा है। वॉइस कर दो इधर। माशाल्लाह, we have more than नहीं 20 तो फिर आपको ये निकालना हाँ पड़ेगा। नहीं, They have joined us from different places like Canada or USA or Dubai or I believe India and Pakistan. So welcome. As per setting, we will be starting our session with the recitation of Holy Quran. So I'll be requesting Mumtaz Sahab to kindly recite. Mr. Mumtaz, I think he's very well known, a great Qari, and people have requested. They wanted to hear the sound. So may I request Mr. Mumtaz Sahab to kindly. जी शौकत साहब, मुझे आप आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, क्या आ रही है? देखिए, ये मैं सूरह बकरा की जी 177 आयत जो है मैं तिलावत कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें इसका एक आपको बैकग्राउंड बताऊं। ये पहले जब हम लोग वहाँ पे अल-फतेम टावर में हमारा दफ्तर होता था, तो वहाँ पे शब्बीर कौसर मरहूम अजान देते थे, तो हम लोग छत पे नमाजें पढ़ते थे हम सब लोग। तो कफील हाशमी मरहूम साहब वो कभी कभी मगरिब की नमाज में आते बहुत प्यार से। एक दिन मैंने एक तिलावत की इस आयत की, तो कहने लगे, मुमताज, इस आयत के अंदर इतनी तसलसल है और इतनी पुरअसर है, ये बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। तो मुझे आज कफील हाशमी साहब बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन आमीन। मैं ये आयत बहुत मुख्तसर है, मैं तिलावत करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اب میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہوں، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود، جن کو مال سے محبت ہے اس کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دیں، غلاموں کو آزاد کریں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ترجمہ ہے مختصراً اس کا، اور ماشاءاللہ یہ میں نے تلاوت کی، ہمارے باقی ساتھی جو ہے کئی بار پڑھ بھی چکے ہوں گے اس کو، الحمدللہ۔ تھینک یو، بہت اچھا، بہت اچھی آپ نے۔ شکریہ ممتاز صاحب، ویری نائس، ماشاءاللہ۔ آپ نے آیت بر جو بہت ہی سورہ بقرہ کی 3 بہت ہی اہم ترین آیت میں سے ایک آیت ہے، اور بعد جو میسج جو یہ ہے صرف نماز پڑھ لینا، حج کر دینا، زکوٰۃ دے دینا نہیں ہے، اس نے اخلاق، لوگوں سے اچھا برتاؤ، لوگوں کے تکلیف میں شریک ہونا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اصل مذہب ہے۔ تھینک یو، تھینک یو صاحب، ویری نائس آف یو، ویری اپروپریٹ، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ اس وقت تقریباً کوئی 24,000 پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اور لوگ بھی جوائن کریں گے۔ میں یہ ہے افسوس کی بات کہ اس ایسے موقع پہ ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں جو ہمارے دوست ساتھی کی وفات پہ، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ واقعی میں وہ شخص وہ تھا جو لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا، اور اس نے جانے کے بعد بھی موقع فراہم کر دیا، اور یہ آپ لوگوں کی شکریہ کہ آپ لوگ آئے۔ اس میں دیکھ رہا ہوں اس میں پراگ بھی ہیں، سلیل بھی ہیں، انیل بھی ہیں، تمام حضرات ہیں، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میں اسے مختصراً یہ بتا دوں فاروق کے بارے میں
फारूक मेरी टीम के बहुत ही अहम रुकन थे और मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो मेरा सिर्फ तो दौर था 5.5-6 साल का उसके हवाले से या उसके पहले के हवाले से इससे वाकिफ था मैं। फारूक प्रोफेशनली और अपने काम के एतबार से बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी था मेरे हिसाब से। अपनी फील्ड से वो वाकिफ था, सब्जेक्ट से वाकिफ था, उसकी एक्सपर्टीज थी उसके ऊपर। और एक ख़ास बात जो आप सब वाकिफ होंगे, कम से कम मैं आपको ना दादा, मैं बैसत उसके लीडर के जो काम भी मैंने उनको दिया उसने कभी ना नहीं किया। ये एक जो ख़ास बात थी। आपको यूँ तो मैंने महसूस किया था कि पेनाटेक का हर स्टाफ मेंबर जो थी, यंगस्टर आए थे, ये सब के सब थे चैलेंज लेने वाले, मुकाबला करने वाले। इसीलिए मैं इनको कहता था कि ये हमारे स्पीड फाइटर्स हैं, ये हमारे गो गेटर्स हैं, ये जाके हल ढूंढते थे हर चीज़ का। बहरहाल तो मैं ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि फारूक जहाँ तक ताल्लुक टेक्निकल उसकी एबिलिटीज़ का था, उसके हिसाब से तो वो बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी था और कोई शक व शुबा नहीं। जहाँ तक ताल्लुक उसकी पर्सनल ज़ात का था, मुझे तो कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया जब तक मैं वहाँ रहा जिसके फारूक से ताल्लुकात ना हो। वो चाहे कंपनी का आदमी हो, चाहे अल्फुत्तैम का हो, चाहे दुबई की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का या पावर सेक्टर पावर कॉरिडोर का आदमी हो, फारूक के ताल्लुकात तकरीबन सबसे थे। और वजह ज़ाहिर है उसका रवैया, उसकी एहतराम, दोस्तों से मिलना जुलना तो बड़ा काबिल तारीफ़ है। इसमें कोई हकीकत नहीं कि फारूक एक बहुत ही जज्बाती आदमी था। स्पेशली रिटायरमेंट के बाद वो बहुत जज्बाती हो गए थे और बाज़ औक़ात मामूली से इख्तिलाफ़ पे कुछ वो खफगी का इज़हार करते थे, लेकिन जहाँ जज्बाती थे वहाँ बेइंतहा एहसास भी थे, वेरी सेंसिटिव। जैसे ही उनको ये एहसास हो जाए कि उनसे जो गलती हो गई, ये एहसास दिला दे, तो फौरी तौर पे उससे माफ़ी मांगते थे, उससे अकेले में भी और सबके सामने। कभी उसको हार महसूस नहीं हुई अपनी गलती को तस्लीम करने का। ये बहुत बड़ी खूबसूरती थी इंसान की कि आदमी जो है वो क्या कहते हैं कि अपने को अपनी गलती का एहसास कर ले और गलती को मान ले। ये बहुत बड़ी खूबी थी। रिटायरमेंट के बाद मैंने 2 इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। एक मैंने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कोशिश की कि आप तमाम लोगों को कनेक्ट कर दें, रिकनेक्ट कर दें और पुरानी यादें आप लोग शेयर कर सकें। उसमें फारूक मेरे मेन आदमी थे, मेन स्कूलर थे, फ्रंट लाइन भी खेलने वाले, और वो उन्हीं की कोशिश से उन्होंने बेइंतहा लोगों को जुड़वाया, कनेक्ट करवाया, ढूंढ के निकाला। और अगर किसी वजह से वो चले गए, उनको मजबूर किया, परसू किया, मेरे ज़रिए किसी और ज़रिए जितना हुआ उनको वो वापस ले आए। बहुत बड़ी खूबी थी। दूसरे, हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था वी केयर का, जो बुनियादी मकसद था ग्रुप बनाने का कि हम लोग एक दूसरे के गम तकलीफ में शरीक हों और एक लोगों की मदद करें, उनका हाल पूछें, बात कर लें। तो वी केयर के नाम से ने बनाया और माशाल्लाह इस वी केयर ने तकरीबन मोर देन 1.5 मिलियन रुपये आप लोगों की मदद से जमा किए और हमने कोई 5 लोगों को मतलब मदद फरमाई उनकी। तो उसमें फारूक जो थे वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते थे। तो ये 2 खूबियाँ रिटायरमेंट के बाद भी, जब हमारा आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप पास वो कुर्सी नहीं है, आप वो ऑफिसर नहीं है, आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर उसके बावजूद ये फीलिंग होना कि एक दूसरे की मदद की जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं इसको बड़ा एडमायर करता हूँ। मुख्तसरन मुझे बताना था तो उनके बारे में। अब मैं हाँ, फारूक मियाँ दुबई, हमारा याद आ गया मुझे, वहाँ नेशनल पेनाटेक का कोई फंक्शन हो, दुबई का कोई इवेंट हो, शेखों घरों की शादियाँ हों, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है रिकॉर्डिंग की, जो होती थी यकीनी उस ज़माने बहुत बड़ी बात थी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना वगैरह, उसमें फारूक सर-ए-फ़हरिस्त थे। लोगों की शादियों में, शेखों की शादियों में हमेशा वो रहे, उसमें रहे, और उसके बाद वो खुद अपना वीडियो एडिटिंग करते थे। तो मेरे घर के कई फंक्शंस को उन्होंने कवर किया, कोई एडिटिंग की। मैं उनका बॉस तो था, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज़ीरो इल्म था। मुझे लगती है नॉलेज नहीं थी एडिटिंग क्या होती है। ये काम जो था ये हमारे फारूक मियाँ करते थे या नदीम जैसे लोग थे एक्सपर्ट हमारे पास माशाल्लाह। तो आज मैंने कोशिश की है उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, छोटी सी वीडियो के लिए बनाने की 8-9 मिनट की, जो मैं आपको भेजूँ और उसको आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी यादें को ताज़ा हो जाएँ। तो ये उसके बारे में।
ذرا تھینک یو سا ہاؤس